My dear viewers, especially I'm addressing the Maithil community. Indeed, it is a matter of bestowal of divine grace. In as much as I happen to be in the great, that is the great building of Vidyapati Bhavan. My dear viewers, the moment the name Vidyapati comes, comes to our mind. Indeed, the stupendous figure, the Himalayan figure of that of immortal poet of poets, great Vidyapati ji, straightway comes to our mind. And I recall when last time, my dear viewers, just by way of introduction, this is Vivekanand Jha, author, academician, and public intellectual, author of the Living Legends of Mithila, part 1. And of course, we are in the process of kick-starting the journey of part 2, and it has, of course, started with a bang. Of course, by the bestowal of divine grace. Moment, my dear viewer, my dear Maithil brethren, the name of Vidyapati comes to our mind, as I was trying to tell you. Last time, in course of writing the Living Legends of Mithila part 1, when I interviewed the great singer, the folklore singer, or rather I would say the singer of Bhojpuri and Maithili, Srimati Sarda Sinhaji. Of course, she spoke about great Vidyapati in the most part of her interview, and there she sang the great stanzas of Vidyapati, that is Bad Sukh Sar Paval Tum Tire ki Paval Tuhe Tire छोरई त निकट नयन नीरे की करब जब तप जोग ध्याने जन्म कृतारथ एकई सराने. So my dear viewers, once again, today it is again a great privilege to be here presented with that of a very, very renowned, thespian, that is Sri Kunal ji, who himself is some sort of phenomenal, because even yesterday, if you can recall, I just interviewed another legend, Professor Indrakant Babu. He too had spoken very highly, even in the loftiest of terms, about that of Kunalji. He needs no introduction, especially among Maithils or in Maithil community, because of his overwhelming achievements in the field of drama, Maithil drama, and in his literary contribution too. So it is indeed a pleasure, because, before I engage Sri Kunalji for one-to-one interaction, it becomes very incumbent on my part to make a very important announcement that Kunalji is going to be a part and parcel of the Living Legends of Mithila part 2. And just in a lighter vein, before just sitting together, we had some introduction, some sort of discussion about what is Sanatan Dharma, what is Hinduism, and of course the glory of Mithila culture. So now it is time. I'm just engaging Sri Kunalji for some sort of conversation with me pertaining to his own background, how he had started his initial journey. Hopefully, though I am not very sure even till now whether he did start his journey from a countryside, from a nondescript village or not, that he is the best person to disclose. But nevertheless, the position that he has attained, that is the height to which he has reached, indeed speaks a volume about the sort of inputs or the Himalayan efforts that he had to invest in terms of reaching up to his current height. So just because it is a book for Mithila, and he would feel comfortable to speak in Maithili, and this is very even good for all the Maithils to know about him, and even to understand who Kunalji is. It becomes important for us to speak in Maithili. Kunalji, ये बहुत सौभाग्य के बात है अपने लोटा के सभा बैस रहल छी, और एक बेर अपने सब पहलियो बैसल छ, बात हमरा फोन में भेल छला, अपने हमरा याद दिलौं, हमरा तुरंत याद पड़ि गेल. तो कनी अपने कृपा क के अपन बैकग्राउंड के बारे में कहे जे छे से अपने कनी बताइए जे अपने कतौ से शुरू केलिए जर्नी और केना के अपने ई जगह तक पहुंचलिए, अपने ई बारे में शुरू करी बताइए. हां, विवेकानंद जी, हमर जन्म जैसे से मध्यवित्त कृषक परिवार में, खेतिहर परिवार में भेल अछि. हमर गांव उस समय पहले मधुबनी सब डिवीजन रहे, अब तो मधुबनी जिला छे. मधुबनी जिला के पाली मोहन कहाबै छै, बाबू पाली नाम से सेहो प्रसिद्ध छै. हमरा गाँव और बहुत कवि सब, कवि साहित्यकार, नामी लोक सब भेल छलाह. ताहि दू गोटा के नाम कहब, रामलोचन ठाकुर हमर अग्रज
वही गामक छथि और ठाकुरे जी के शोध छलनि कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर सोरे हुनके वंशक व्यक्ति छथिन। हमर एकटा नमहर सनक गाम अछि जे नेपाल से करीब 30-35 किलोमीटर दक्षिण पड़ै छै और पढ़ल लिखल लोग 12 वर्ना गाम छी। वही गामक प्राइमरी स्कूल तक अपना गाम में पढ़लहुँ। अब तो हमारा गाम में से हाई स्कूल भऽ गेलै। एकर बाद एक बगल में डरहा गाँव छलै, ओहि डरहा गाम से हम अपर प्राइमरी तक के शिक्षा देलहुँ। तकर बाद खजौली स्कूल से मैट्रिक केलहुँ। फिर मधुबनी आरके कॉलेज से BSc केलहुँ। ओकर बाद रोजगार के मामला एलै। शुरुआती दिन से हमारे साहित्य वगैरह सबसे पढ़ल में कॉलेज और स्कूल अपने खासकर डरहा स्कूल से हमरा पढ़ के लेल डरहा स्कूल में पहले स्कीम कोनो एलै, बड़का बक्सा देख लै सरकार दिस, ओहिमे किताब सब आबै, बहुत रास किताब बक्सा में बनल रहै। तो मास्टर सब ओकरा खोलऽ तोलऽ नहि दै छलखिन। तो 2टा मास्टर रहै छलखिन। तो जहन बड़का मास्टर जे रहथिन रूपलाल मास्टर, रूपलाल मास्टर एकटा गेनालाल मास्टर, रूपलाल मास्टर से हम बड्ड डराइ और गेनालाल मास्टर साहब सब नहीं डराइ। बहुत मतलब ज्ञास गो बहुत सोझ आदमी सब। और रूपलाल मास्टर पढ़बो में बहुत बढ़िया और नहीं गलती करो तो मारो में उतरा तेज रहता। तो मारी के डर कि जहिया रूपलाल मास्टर नहीं थे तो हम अलमारी खोल दी। हल्ला गुल्ला नहीं करे तो गेनालाल मास्टर साहब के सेहो सुविधा रहे जो किताब लोग पढ़े रहे तो हल्ला गुल्ला छोड़ा तो नहीं करता, मत नहीं करता। तो ये सब पढ़ करती हाई स्कूल में है ना। तो वही के दौरान हमारा अधिक से अधिक लागल कि पहले तो वितृष्णा भगल सरकारी नौकरी सबसे, विभिन्न तरह के अनुभव है गाँव घरक सबसे। और वितृष्णा के कारण की कारण जनरल ओकरा हम बहुत एखन अथी नहीं कर सकै छी। सरकारी नौकरी में गेला के बाद लोग सब जे छै घूसखोर होइए, वो जे छै काम चोर होइए, एहन तरह धारणा गामक समाज के बीच में देखै छी। गाँव समाज में छलैए। गाँव में हम बड़ा लोकप्रिय बच्चा रही, लोग सब हमरा बड़ प्रेम करै छल। हमारे बिहार बाद से लोग सब पीटी सब चला भैयारी में सब जेठ हम नहीं रहे अपना, लेकिन हमारे भैयारी सब छोट छोट सब बाकी सब कोई जीतती है। हमारे बाबा से एखनो पैदा रहल छै, एखनो जे सोशल हायरार्की छै ताहि हिसाब से हमारे बाबा सब छै। तो वो एखनो हमरा जे गाँव घर लोग सब बहुत प्रेम अछि। फिर आरके कॉलेज से BSc किया। ओहि समय भेल कि हमरा मेडिकल वगैरह में जाके बात हुई। हमारे मास्टर छला जीवकानंद जी, अहाँ जनैत हेबै जीवकानंद जी खजौली स्कूल में से टीचर रहे। तो जीवकानंद मैथिली साहित्य के बहुत बड़का नाम छै, बहुत महान नाम छै। हुनका रहन कि जे केमिस्ट्री जगह बहुत बढ़िया हेतै से डॉक्टर बनि सकै। हमारा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हमारा मन जनरल डॉक्टर है। लेकिन वही समय में जयप्रकाश आंदोलन भेलै, किछु एहन चीज भेलै कि हम एग्जामो नहीं दे सकलियै। तकर बाद भेलै कि जे हमरा तो किछु करक चाही ना। तो हम ये सोचलहुँ कि हमरा थिएटर करक चाही, नाटक। हमरा नाटक वगैरह सबसे ओहि समय हाई स्कूल समय से लागि गेल रहा। गाँव घर में संदेश नाच वगैरह सब होइ छलै दुर्गा पूजा के समय में, खूब बहुत बढ़िया होइ छै। हमरा आँखि में एखनो बस अबै छै। हमरा खजौली स्कूल में 2टा मैदान छै, एक हाई स्कूल के मैदान, एक मिडिल स्कूल के मैदान। हाई स्कूल के मैदान पर से मिडिल स्कूल के मैदान पर दुर्गा मंदिर छलैया, दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा होइ छलै। ओहिठाम मेला लगै और नाटक के पंडाल बने, स्टेज बने। और हाई स्कूल के मैदान पर खाली चौकी सब लगा फिर नाच के लिए स्टेज बने। तो हाई स्कूल वाला दुर्गा मंदिर के सामने में जो नाटक से होइ छै आमतौर पर जरा कहै छै पारसी रंगमंच जरा कहै छै, चतुर्भुज के नाटक सब बेसी होइ छलै, हिंदी के नाटक सब। और हाई स्कूल वाला मैदान पर खाली नाच हुई आम जनता के लिए, जिसमें सलहेश नाच भऽ गेल, लोरी भऽ गेल। लोरी तक नाच नहीं, सलहेश नाच और यहाँ का अल्लाह रुदल ये बेसी पॉपुलर छलै। या कहीं कोई शीत पसंद से हो इसलिए। तो जो हाई स्कूल के दौरान जो 3-4 घंटा हमारे हम अरबैद कब भर रहे तो नाच देखिए। और हमारा अद्भुत आकर्षण भेल में बहुत रास चीज सब से हमरा लागल कि ये हमार मौलिक सांस्कृतिक अंग थी। तो एहि दुआरे से ग्रेजुएशन के बात हमरा में जमल रहा, बधौनी अयला के बाद जमल रहा ये बात। तो भेल कि हमरा किछु करबाक अछि तो हमरा थिएटर दिस जबाक चाहिए। और उस समय में कविता तविता लिखल के सेहो भऽ मिथिला मेरे समय छपऽ लागल रही। तो लागल कि जे यदि हमरा किछु कहबाक अछि, हमरा लगैत रहा कि हमरा बहुत किछु तो कहै छलहुँ तऽ ओहिठाम लागल कि जे कविता एकटा एक्सप्रेशन छै, हमरा किछु कहबाक कविता लिखल छियै या पता नहीं। लेकिन जब कनी मनी रंगमंच के प्रति जे जानकारी
हम ओहि समय ओहि वातावरण में जुटा सकल रही, बहुत कम बहुत थोड़ समय काम करब नाटक सब जे जानकारी जुटा रही। हमारे गामक बहुत रास लोग सब कलकत्ता में ट्राम कंपनी में नौकरी करते रहथिन, या बहुत तरह और बहुत रजामंदो का सब करै छथिन, तो वो सब उनका मिथिला संघ में के सदस्य सब रहथिन। और मिथिला संघ एक संस्था बनने रहे मैथिली रंगमंच नाम से, और वो संस्था मैथिली में नाटक करे, नाटक लिखायल जाए, नाटक कयल जाए, वो सब गाँव जनकथिन तनो नाटक सेहो करथिन। ई सबटा हमर जे रंगमंचक प्रति अनुराग तरफ बढ़ा देलक। तो ग्रेजुएशन के बाद हम सोचलहुँ कि हमरा कलकत्ता जाकर अंठम तऽ एडमिशन हमर नहीं हैत, इससे पहले हम NSD में ट्राई केलिए, नहीं भेल। एहि दुआरे से हम अलकाजी सनक लोग सेलेक्ट करना छला जे हमरा पास थिएटर के पर्सनल कोनो बैकग्राउंड तो छल नहीं, अपने हम अभिनेतो नहीं छलहुँ, कुछ रहै के आधार पर भऽ जाए, हमर फेल भेनाइ बहुत स्वाभाविक छलै NSD में। ओकर बाद हम जब कलकत्ता गेलहुँ तीस सोचने रही कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लऽ लेब ड्रामा में, और वही से हमरा आगू बढ़बाक या हम ओहिठाम गेलाक बाद ओतऽ बहुत रामलोचन जी पढ़ाइ सलाह करते में, और बहुत गोटा लोक सब रहथि ओहिठाम, हमर कविता लिखऽ दुआरे से सेहो किछु गोटा परिचित सब भऽ गेल रहथि, और देख सुनऽ ठीक ठाक लागल रहतै छलै ओहि समय में। दुलारू सनक लड़का तो रहबे करी, तो बहुत गोटा के प्रिय भऽ गेलै। श्रीकांत जी मंडल बहुत ओहि समय सक्रिय रहे, गुरनाथ झा सक्रिय रहे, दयानाथ झा सक्रिय रहे, बिंदेश्वर मंडल चला एकटा कुर्मी सक्रिय कोष के लोग वो सब सक्रिय रहे, बहुत लोग सब रहे, बड़ा कि वाइब्रेंट वातावरण मैथिली के रहे मिथिला में। बाबू साहब चौधरी जी रहे ओहिठाम गेलाक बाद हमरा भेटला नरेंद्र झा पहिने हमरा आदमी पोषण भेट, हुनकर भाई छोट भाई भेटला महेंद्र झा, और एक तरह के विचारधारा लगैया जेना होइ छै ने कि जेना एक दूसरा के खोज रहल होइ, तेना हम एक दूसरा के आप्त मित्र भऽ गेलहुँ। नरेंद्र झा नहीं महेंद्र झा, अच्छा महेंद्र अग्निपुष्प नाम से लिखे छै, अच्छा प्रख्यात छथिन अग्निपुष्प से हमरा अग्निपुष्पे कहब, हमसब मनसी कहै छियै, हमसब बेटा तऽ मनसिए कहै छियै, घरक नाम हमर मनसी छै, पूरा नाम महेंद्र झा छै, और अग्निपुष्प नाम से लिखे छै। हुनकर जेठ भाई छथिन नरेंद्र झा चार्टर्ड अकाउंटेंट छथिन, तो हुनका वो हमर अनायास हमर भैया भऽ गेला। तो हम जे ओहिठाम अथी केलिए उत्सुकता अपन जिज्ञासा में कथा बीच रहे, प्रबोध बाबू रहे, प्रबोध बाबू लग खास प्रबोध बाबू शिक्षा क्षेत्र में चला ओहिठाम, और हुनकर एकटा खास हस्ती छलनि हेँ, मिथिला संघक कार्यकारिणी छलाह, मिथिला दर्शन पत्रिका से निकलैत रहे, ओ एहन रही जे प्रोफेशनल ढंग से पत्रिका निकालक शायद पहिल प्रयास भेल रहै, प्रेस त्रेस बैसा कऽ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलि कऽ शुरू केलक, बहुत आनंद आवे, बहुत बड़ी बहुत नीक समय रहे। हमर जे ओरिएंटेशन के टाइम छी से वएह छी। तो भैया कहलक कि थिएटर से किछु नहीं हेतौ, मैंने नरेंद्र झा तोरा ऐसे किसी अनुकर जे तोरा रोजगार बनल हो, तोरा तो जे मन होइ छै अपन करैत रहिए। तो बड़क बात नहीं काटल जाए तो हम थिएटर में एडमिशन नहीं भेल। आब लगैया कि भैया के बात यदि काटि देने रहिए तो बेसी बढ़िया छलै हमरा लेल, तो वएह कष्ट कंटेंशन क्या लगल। तो ओहिठाम से कलकत्ता से हमरा देखबाक सुनबाक और समझबाक अपना आपके परिपक्व करबाक पूरा अवसर भेटल। तो हमर अल्मा मैटर जे अछि हमर सोच के लऽ कऽ, हमर संस्कृति के बारे में, या जीवन के बारे में, या समाज के बारे में जे कोनो सोच अछि, जे कोनो ढंग अछि, से प्रभावित भेल कलकत्ता द्वारे। ओ जे पूरा वातावरण छलै मैथिल लोकनिक बीच में, और कलकत्ता के अपन वातावरण छै, ओहिठाम हमर बहुत रेगुलर बांग्ला थिएटर सत्संगो में बहुत अथी रहै, तो पुरंद चक्रवर्ती सब सत्संग लोक अथी करै छलाह, अहाँके बादल सरकार के नाटक गोरे सब होइत रहे, सबटा हमरा बहुत नीक सब समय भेटल रहै देख कऽ। आनंद रामक थिएटर हिंदी थिएटर ग्रुप रही से बहुत श्यामानंद जलान वगैरह सब जबरदस्त से करै छलाह। एहन बड़का लीजेंड्स ऑफ लीजेंड्स जकरा कहबै अहाँ, तेहन लोक सब ओहिठाम मौजूद छलै कलकत्ता में, जकरा सबके देखबाक दूरे से सही देखबाक अथी भेल। मृणाल से फिल्म बना रहल रहै, संजोगी के मृणाल से हमरा भेट करबाक सेहो अवसर भेटल। ई हमरा लेल मोन बहुत प्रिय समय अछि ओकरा लेल। तो जे हमर प्रिय फिल्मकार छथि मृणाल से, मतलब यदि हमरा पूछब अहाँ बंगाल के सबसे बढ़िया फिल्मकार के, तो पहिने कहब दत्तू घटक, दोसर कहब मृणाल से, तेसर कहब सत्यजीत राय। अच्छा के सार्वभौम रूप से लोग सत्यजीत राय के नाम कहने और सत्यजीत राय कोनो जवाब नहीं छै, लेकिन हमरा हृदय के बेसी नजदीक छल दत्तू घटक। अच्छा हाँ, ओकर बाद मृणाल से, तकर बाद तो हमर जे ओ अथी अछि ओहिठाम से अथी भेल, वएह हमर जे किछु सिखल पढ़ल अछि से कलकत्ता द्वारे अछि। हमर द्वारे कलकत्ता में रहल, हुनका सबक बीच में रहि कऽ
जे किछु हम अर्जित कऽ सकलहुँ जे किछु अर्जित नहि कऽ सकलहुँ से कलकत्तेमे कलकत्ताके बाद विवाह दाम तऽ भए गेल रहै बच्चो एकटा भऽ गेल रहै नेचुरल जिम्मेदारी छै मध्यवित्त परिवारक लोक छी जमींदारक घरक तऽ छी नहि जे चलैत रहतै बहुत बढ़िआँ या 10 कट्ठा 10 बीघा जमीनमे देख पढ़ि कऽ हम रवि बाबूसँ कहै इसकुल खोलि लेब से तऽ हेतै नहि से छलाहे नहि लेकिन उपाय नहि हेतै हमरा उपार्जन तऽ करऽ पड़तै तऽ ओहिठाम उपार्जन भैयाके सलाह काज देलक तऽ ओहिमे कष्ट करसी जबकि हम ओकर बहुत उपयोग नहि कऽ सकलियै ओकर बाद 85 में पटना आबि गेलियै किया तऽ देखलियै कि पटनामे ओहि समयमे से किछु थिएटरके घमाघमी बढ़ि गेलै एक अंतर्राष्ट्रीय मैथिली नाटक प्रतियोगिता समारोहके कार्यक्रम नाट्य संस्था शुरू केने रहै तऽ ओ शुरू केलकै तऽ ओहिठाम बहुत बढ़िआँ लगातार 8-9 साल तक करैत रहलै मंत्रेश्वर बाबू करैत भगवंत मंत्रेश्वर बाबू आओर एकटा चौधरी जी छलाह जे चेतना समितिके सेक्रेटरी सेहो रहथि गजेंद्र नारायण चौधरी तो हुनकर सभाक नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया आयोजन भेलै तकर फल ई भेलै कि 5-7 दिन का वो आयोजन हो और 17-18 टा नाटक हो देश भर में बोकारो जमशेदपुर विराटनगर जनकपुर सब धनबाद सब जगह पर जैसे नाट्य संस्था खुल गए पटना में 4-5 टा नाट्य संस्था खुल गए हमरा लगल कि हमार जगह जमीन गाय तो हम पटना पटना में छी। My dear viewers, my dear Maithil brethren, what what Kunal ji says, indeed I too have the same, same template, or you can say the similar sort of upbringing. I too have, or I too trust my genesis, of course from ancestry from Madhubani, but I am born and brought up in Kolkata. Whatever people consider me to be an intellectual today, all my intellectuality, indeed the template of my intellectuality has been Kolkata. Indeed, unlike Kunalji, because Kunalji is a thespian, he has a greater understanding of movies, but I consider Satyajit Ray a immortal figure, and I have very recently written an article also. But that is beside the point. What exactly I wanted to say on my own perception, that Kolkata, today's Kolkata or erstwhile Calcutta has been the fertile ground for the grooming of intellectuals, and the intellectuals from Calcutta are ruling the roost. They are scattered across the globe, whether it is Dr. Amartya Sen, or it is Abhijit Banerjee, or it is Mr. Vivekanand Jha, or it is Kunal ji. So all these sort of people, or Dr. part-2 Sahib, the great, one of the topmost physicists of the country, only disciple of Dr. Satyen Bose, who is alive today, or Buddhinath Babu, of course he is a part of the Living Legends of Mithila part-2. So Dr. Buddhinath Misra ji, all this galaxy of people, including me too, we have our very common template, intellectual common template of being Kolkata. कुणाल जी अपने बहुत बढ़िया बात कही एखन तक जे अपने पटना आबि गेलियै ड्रामा बहुत बढ़िया से अपने के लैंग्वेज अपने के कर्मभूमि छी तकर बाद अपने किछु प्रकाश डालि दियौ जे कोन कोन बढ़िया बढ़िया ड्रामा कोन तरह से अपने के और जे छै जे मतलब उत्थान भेलै और आइ जे अपने लोग सब चिन्ह रहल यऽ खास कर के मिथिला में लोग सब बहुत बढ़िया से अपने के प्रशंसक अछि जे एहि तरह के जे छै अपने कार्य केलिए तकर किछु अपने पृष्ठभूमि दऽ दियौ। देखियो थिएटर में अयलाक बाद मंच पर जब बात करै छी तहन अयलाक बाद हमरा कारण जी के एकटा बात बेसी प्रभावित केलक कारण जी से पहिने हम ब्रेक्ट हमरा बेसी प्रभावित केलक जे थिएटर जैसे स्थानीय होइ छै तऽ कोनो भाषाके अपन रंग होयबाक चाही और तकर बाद हम पढ़ऽ लगलियै तऽ देखलियै कि जे एहि देश भरिमे संस्कृत नाटक जहन उतार पर छलैया तखन जे नाट्यमे शुरू भेलै तऽ मिथिलेमे शुरू भेलै। अच्छा जी, जो कालिदास जी के अपने सुने संस्कृत नाटक 13वीं शताब्दी के आसपास में संस्कृत नाटक लिखना वगैरह सब बंद भऽ गेल रहे। संस्कृत नाटक तो खेला एखनो जा रहल छै, एखनो जैसे रतन थियम खेला रहल छै, संस्कृत बहुत रास लोक सब खेला रहल छै नाटक, या तो अमूल्य कृति सब छियै, अद्भुत कृति सब छियै तऽ ओ खेलायल जा रहल छै, लेकिन लिखनाइ और ओकर एकटा परंपरा जे समाप्त भऽ रहल छै, उतार पर छलै। तहन मिथिला में एकटा नव तरहक नाट्य रचना शुरू भेलै। अच्छा, तकर बाद ओ जरा बाद कीर्तनीय नाटक कि कोन नाटक कीर्तनीय नाटक हो गेलै। वो तो ई पढ़नाइ के क्रम में जैसे से अध्ययन के क्रम में समझ में आवे लागल धीरे धीरे। दोसर ई बात छै कीर्तनीय नाटक की छै, करिए दू लाइन लोक सब के कीर्तनीय नाटक बहुत नमहर अथी एकर तो बहुत समय लागत एमे करब। अच्छा, संक्षेप में अहाँ कहि दी कि
शुरुआती दौर में संस्कृत नाटकक संरचना के आधार पर कोनो स्थानीय विषय के लऽ कऽ जे कोनो विषय होय से लऽ कऽ ओहि पर जे रचना होय ओकर से अथी जे हेबाक चाही, ओकर जे निरूपण हो से पद्यात्मक बेसी हो, गद्यात्मक कम से कम हो, संवाद कम से कम, गीत गद्य बेसी से बेसी हो। एहि के आधार पर रचना में सबसे पहले रचना छै दूर समागम। दूर समागम, हाँ, ज्योतिषर के रचना छै। अच्छा, दूर समागम छै जकरा से प्रहसन कहल जाइ छै, और संस्कृत नाटक व्याकरण के हिसाब से अगर कहियो तो निकृष्ट प्रहसन मानल जाइ छै। ओकर बाद अहाँ धूर्त समागम पढ़ि लिअ, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अहाँ ई पढ़ि लिअ अंधेर नगरी। अहाँके लागत कि एके ढंग से लिखल गई चीज छै, माने ओकरो विस्तार छै। धूर्त समागम के विस्तार से अंधेर नगरी में भेटै छै। अंधेर नगरी ज्यादा पढ़ सकै छै। ओना अपना आप में धूर्त समागम से बहुत जबरदस्त बात कहै छै, बहुत जोरदार ढंग से कहै छै। ओहि आधार पर ओ एकटा रूप बनेलखिन ज्योतिषर, ओहि के आधार पर बहुत राज रचना हो लगलै, बहुत राज रचना हो लगलै, तो वो धीरे धीरे परिपक्व होइत गेलै, जे अंत में आबि कऽ 14-15 शताब्दी में उमापति के जे अथी छल पारिजात, ओहिमे जाकऽ कंप्लीट हो गेलै। ओकरा कंप्लीट कहलो जाइ छै पारिजात कंप्लीट बात। अब ई देखलो गीत एलै तऽ कतऽसँ संस्कृत नाटक में से कतौ अहाँके विक्रम और विषयम में छै संस्कृत नाटक में संस्कृत नाटक थी, ओहिमे से गीतक प्रयोग कयल गेल छै। आमतौर पर गीतक प्रयोग नहीं कयल जाइ छै, ओ अपवाद छलै ओहिमे। ई गीत एलै कतऽसँ जे हमर फेर ओकर जे स्कूली जीवनक जे अनुभव छलै ताहि दिस लऽ गेल जे ई एलै लोकनाट्यसँ। किएक तऽ संस्कृत नाटको से पहिने लोकनाट्य छलै। लोकनाट्य बहुत पहिने से छै। मनुष्य जहिया से अपन मनोरंजन के जरूरत बुझा लागल हेतै, जहिया कहियो बुझा लागल हेतै, हजारों हजार साल पहले, तहिए से जे छै ई सब बननाइ शुरू भऽ गेलै। धीरे धीरे बनलै, आस्ते आस्ते 100,000 2,000 साल के बाद एकटा रूप ग्रहण कऽ लेलकै, जकरा हमसब नाच कहै छियै। नाच नाट्य से, नाच जैसे से नाट्य का प्रबंध। अच्छा, हमरा सब ओहिठाम मैथिली में नाच के मतलब छै जे नाट्य। नाट्य जब नाच के मतलब छै नाट्य। नाट्य के हम सब प्रबंध से नाच कहै छियै। सलेश नाच, लोरिक नाच, शीत बसंत नाच, या आल्हा रुदल नाच, या जे कोनो ओ जे ओकर जे प्रोटैगोनिस्ट छै, ओ प्रोटैगोनिस्ट के नाम के आधार पर ओइ जे रचना छै ओकर जे छै नामकरण होइत रहैया। लेकिन ये ऑल टुगेदर यदि पूरा ओकर समूहवाचक नाम देबै तो समूहवाचक भेलै नाच। ई हमर सबके लोक नाट्य छै। अच्छा, एहि नाट्य के भिखारी ठाकुर के जे अथी छै, जे नाटक छै सब छै, ओहे एहि नाच के जे छै से अगला स्टेज छै ओ नाच। ओकर बेसिकली ओकर पूरा फॉर्मेट नाच के छै, खाली सब्जेक्ट बदल देलखिन, सब्जेक्ट अपडेट कर देलखिन। अच्छा, जे कंटेम्पररी टाइम के सब्जेक्ट छै। हमरा ठाम एखनो सलेश नाच सलेशक कथा के बात करैया। लोरिक नाच तो होइते नहीं, अल्लाह रुदल हो जाता अल्लाह रुदल के बात करिए। शीत बसंत है तो ओहि समय शीत बसंत के पूर्णा खिस्सा छै, लोक कथा छै, ओहि के आधार पर बात करिए। हम तकर बाद हम अध्ययन करऽ लगलिए तऽ देखलहुँ कि जतेक हमरा ठाम जे छै से बड़का बड़का 7टा महागाथा सब छै मैथिली में। 7टा महागाथा, और 7 महागाथा के जे छै कि जेरा 7 गो नाम यदि कहबै तऽ 7 गो नाम के पूरा तुरंत अगर नोट पड़ जाए तऽ कहि दै छी। एकटा तऽ राजा सलहेश बहुत फेमस छै, राजा सलहेश छै। दोसर छै लोरिकाइन, तेसर छै दीनाभद्री जी, चारिम छै नैकावन जार, पांचम छै अहाँके राय रामपाल, छठम छै अहाँके दीनाभद्री के देलहुँ। दूटा और छै, कोनो बात पांचटा ठीक छै, बुझ गेलियै। हां, दूटा और छै, कोनो बात ठीक जी, जे राय लभर को छै जी, सोभेर और 7 एकटा और छै। 7टा महागाथा मानल जाइ छै। ई विशाल छै, माने महाभारत के ऐसे आकार के महागाथा सब। अच्छा, सब बड़का ऐसे कंठाग्र होइ छलै पहिने, माने एक मुंह से दोसर मुंह के श्रुति कार्य सब छलै। एकरा से जनता के नहीं हेतै, जनता अपना हिसाब से केने हेतै। तो ओहिमे जहन देखलिए जे केओ रचना करै छै ओकर इच्छा आकांक्षा जिसमें प्रतिध्वनित होइ छै। हम अपन बातचीत में बात बाजि रहल छी, हमरा मन में जे अछि हमर रचना में देख रहल तो ओ जनता जे कोनो रचना कोनो लोक कथा लिखलकै है, लोक कथा लिखलकै है, या कोनो गाथा बनेलकै है, ओ गाथा के जे ओहि के बात ध्वनित जे होइ छै से निश्चित रूप से ओहि समय के जनता के आकांक्षा छै, जन आकांक्षा छै। तो और बाद ओकरा कई रूप में प्रदर्शित करै छलै। जेना हम सलेश नाच के बात करी तो सलेश नाच जे छै से असगरे गायब के सेहो छै। और आमतौर पर डोम जाति के लोग सब अपना अपना जाति के नाम लेबाक नहीं चाही, हम एकरा अपमानक में नहीं लऽ रहल जी जी, हम एकरा सम्मानक अर्थ में लऽ रहल जी जी, बिल्कुल वही जाति के लोग ई काज करै छै जी। दोसर जाति नहीं बचा के रखलक जी। ओरनी नाम के एकटा बाजा होइ छै,
जरा अरुणा से कहल जाइ छै भद्र लोक सब ओकरा पंडित जी सब ओकरा अरुणा कहै छथिन ओढ़नी होइ छै जे एकतारा सनक बाजल जे वायलिन जकाँ बजायल जाइ छै। अच्छा एकतारा होइ छै कि बजायल जाइ छै वायलिन जकाँ ओ हैंडमेड होइ छै मतलब देशे में बनायल जाइ छै ओकरा के दुकान में नहीं भेटत मतलब ककरो घर में भेट जाए जाए ओ लुप्त छै ओ ओढ़नी पर पूरा के पूरा गाथा बजा बजा के गबै छलै ओ गाथा एक दिन में खत्म नहीं होइ छलै महीनों लगै छलै। रात में जब खा पी के बैसल ओकर मनोरंजन छै सवेरे सकाल खा लक 6-7 बजे 5-6-7 बजे दलान में अन्हार छै सुत के छै ने दुकान समुदाय हम सब छियै सब दिन से हमारा पास ओते संपत्ति देखो तो कानून ने राज पेट्रोल में जरा के कर या बड़का बहुत इज्जत कर किस सामंत लोगन के छल हेतन आम जनता के पास तो ओते छले नहीं खेनाई खेलक डिबिया में जलक डिबिया में जलक तो दलान पर दलानो कम होइ छलै एटा सामूहिक दलान होइ छलै लोग सब जाके रात के अपन किसी पटोटन दो देलक पटोट नहीं कहै छी सुत रहल तो सुतत केना सुतत से पहिने शुरू होइ छै ताहिमे सब किछु गाथा शुरू होइ छलै गीत शुरू होइ छलै कोनो गाथा के गायन शुरू होइ छलै और जहन लोग धीरे सुति रहल तो गन्हारो पर सुति रहल फिर जब तक खत्म केलक अगला दिन ओतऽ से शुरू। अच्छा ई मनोरंजनक ढंग छलक मतलब एकटा वंश परंपरा से समान तरह गाथा के अगर अलावे छोट छोट गाथा जरा लोक कथा कहै छी हम छोट छोट गाथा सब छै विभिन्न तरह के गीत सब छै जे काजक समय में हमरा सबटा गबै छला धान रोप रहल त मलार गाबि रहल छै जात पीस रहल त लगनी गाबि रहल छै जैसे जहनो देखा लगली त लागल कि जे कीर्तन नाटक में जे गीत एलै से लोक नाट्य चलै नाच चलै अर्थात हमर जे प्रारंभिक रूप है नाच छै तखन जे एहिठाम से शुरू होइया हमर अपन निजी से अभिनय पद्धति हम दरअसल अही प्रकाश के नहीं शुरू संक्षेप में बात कर करो बहुत लंबा सनक बात है तो और ओना देखबे कि कीर्तनीय नाटक और विद्यापति पद मिला कर बंगाल में एक नव तरह भाषा बना लगे जरा ब्रजबुली कहै छै। अच्छा और ओइमे कम से कम 3 पोएट जे छै भेला जे कविता लिखे छलखिन हैं जरा स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर कहने छथिन इमेजिनेशन मैथिली इमिटेशन मैथिली स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर अपन जीवन यात्रा में पुस्तक सब जे इमिटेशन मैथिली छी और स्वयं वो इमिटेशन मैथिली में कलन भानु सिंह पदावली में उनकर इच्छा जी तो ई क्षमता से लोग जान के आई मोबाइल वाला जुग में छलै वो कंठ से निकले छलै मुहे प्रसारित भेलै त एतेक ताकत छलै तैं एतेक दूर प्रसारित भेलै जकरा में ताकत छै वह प्रसारित होइ छै वह ओकरे अनुकरण कयल जाइ छै। कुणाल बाबू एक्चुअली सुगेवास के समयो कम है और वीडियो कर जे छै हाथों के वजह गति के अपने के एकटा ई पूछा चाहब जे ई जे सिनेमा एला के बाद नाटक के तो स्कोप ऑफ खत्म जका छै एहि समय में अपने की कहबै नाटक केना का सिविलाइजेशन बचा के रखबाक छै सिनेमा हो कि टीवी हो किछ हो जी नाटक के प्रतिद्वंदता हमरा से नहीं छै जी नाटक लिविंग आर्ट छै जी जीवित हमरा सामने में नाटक भ रहल अछि और वो एखन है तो खत्म भ जाए जना पहले माइट के दीवार पर मिथिला चित्रकला लिखल जाय छलिए कि जहिया ओ दीवार के दोबारा रंगल ढोरल जेते ओ चित्र मिटा देते फिर दोबारा चित्र पर लिखल जेते जना अरिपन पाड़ल जाय छलिए जहन अरिपन पाड़ देल गेलिए जहन ओकरा फिर आंगन के अथी के निपल जेते तो फिर अरिपन मिटा देते ये लिविंग आर्ट छै त और सिनेमा और टीवी लिविंग आर्ट नहीं छै ये अहाँ के एक बेर भऽ गेलै डॉक्यूमेंटेड आर्ट छै भऽ गेलै त भऽ गेलै हां एक बार बना लग बनवा में टाइम लगे छै नाटक में बनवा में जे होइ छै बड़ तैयारी करे में जे टाइम लगे छै लेकिन वो खत्म होइ छै वो निहित समय में 1.5 घंटा के प्ले छै तो 1.5 घंटा में खत्म हेतै कलाकार के जे बजबाक छै से अगर गलतियों बजलै त बजा गेलै जना कहबे ने धनुष से निकलल तीर और मुंह से निकलल बात से वापस नहीं होइ छै तेना रंगमंच पर कयल गेल बात कर वापस नहीं होकर एडिट नहीं भऽ सकैया रंगमंच के एडिट नहीं भऽ सकैया जे कहल गेलै से कहल ठीक तकरा कोनो ओकरा प्रतिद्वंदता नहीं छै जी तो मतलब अपने की कहा चाहिए जे ड्रामा सदाबहार छै और सदाबहार रहते सब दिन the drama is forever जी great my dear viewers we have just heard one of the great thespians of Mithila as well as known who is known across India as well as abroad. In fact, he has been talking about or sharing with me and his own very rich and varied experience to all of us. Most importantly, my dear viewers, the Living Legends of Mithila part 2 is absolutely based on those exalted characters who have genuinely contributed towards the growth of Mithila in some way or other, and Kunalji's name as a great
as a, having played a pivotal role in drama is, is well known fact today. So therefore, of course, he has so much tales to tell. And of course, all that require much of time, and time is really a constraining factor, of course, at this particular juncture. So, I just requested him to share, a very rich experience in as concise a fashion as he was capable of. So, therefore, he tried to share the versatility which he epitomizes in the shortest possible time, even with the greatest of frugality of words that he is very much capable of. Of course, for earning a living, he has become a cost accountant. And that is what he is doing. Like me also, from chartered accountancy background, I took to writing as a clarion call of my heart and soul. Of course, teaching also, but now I am an avowed, very, very devoted writer. So, of course, my dear viewers, just Living Legends of Mithila Part 2 is very much on the anvil. By the grace of divine, we are likely to launch the book by the end of 2024. Almost 4 to 5 people we have already portrayed, and Kunal happens to be one of them. With all this, I thank Kunal from the core of my heart for sharing his rich and varied experience with the shortest possible time. But of course, only after the argument which took place, after I have satisfied his skepticism and apprehension, especially on the ideological front, he has agreed to be a part of this. So definitely we are all awaiting, let us await for another great journey of Mythic achievers. The living Mythic achievers, which is to be incorporated or encapsulated in the upcoming book, that is the Living Legends of Mithila Part 2. Thanks to all of you. Thanks to my dear brother, who came with me and who has been who played a pivotal part and has been with them for recording this very conversation. I am thankful to Pradeep ji for doing this great favor to us. Thanks to all my viewers, all my Mythic brethren, and all my fellow compatriots and the humanity at large. Thanks to all of you. Thanks to Kunal ji.